بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کی جیت پر اہل کراچی کو، اس کے نظم کو، اس کے صبر کو، اس کے استقلال کو مبارکباد پیش کروں گا، جنہوں نے نامصائب حالات میں رہتے ہوئے بھی آج متحدہ قومی موومنٹ کے بانی، ان کے نمائندوں کو بھرپور انداز میں ووٹ ڈال کے الیکٹ کیا۔ اہل کراچی اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ شکریہ کراچی، جنہوں نے اتنے مشکل حالات کے پاکستان میں ایسا انتخاب، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایسا انتخاب پاکستان میں ماضی میں کبھی نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین کے الیکشن ہوئے ہیں، میں حکومت وقت کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ آج کراچی کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ حالانکہ بہت ساری تلخیاں ہیں اس میں، مگر میں ان تلخیوں کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، جو ماضی میں ہوا اس کو بھول جائیں، آگے چلتے ہیں۔ میں اپنے قائد بانی متحدہ قومی موومنٹ کی ہدایت پر، جو انہوں نے مجھے ہدایت دی تھی جب مجھے نامنیٹ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم متحدہ قومی موومنٹ کے میئر نہیں ہو، تم کراچی کے میئر ہو، میں انشاءاللہ ان کی سوچ، اس فلسفے کو جو کہ عوامی خدمت ہے، اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ میرے ساتھ ارشد وورا بھائی موجود ہیں اور ہماری پوری ٹیم ہے۔ ہمارے جو اضلاع کے لوگ ہیں، چاہے وہ اضلاع ہم نے جیتے ہیں یا کسی اور جماعت نے جیتے ہیں، ہم سب ساتھ کام کریں گے مل کے۔ ہم سب ساتھ مل کے، ساری سیاسی جماعتیں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ میں جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس صوبے کے، ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ آئین کے تحت تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے کسٹوڈین چیف منسٹر ہیں، اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ حالات دیکھتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کریں جن کی وجہ سے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے جائیں۔ آپ اگر یہ اختیارات دیں گے تو کراچی ڈیولپ کرے گا، کراچی ڈیولپ کرے گا، سندھ ڈیولپ کرے گا، پاکستان ڈیولپ کرے گا۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اس سے پورا ملک چلتا ہے۔ تو ہم سب کا فرض بن جاتا ہے، مجھ سے زیادہ فرض چیف ایگزیکٹو کا بنتا ہے، جو کہ اس صوبے کا چیف منسٹر ہے۔ میں پھر سے ان کو مبارکباد پیش کروں گا، اور امید رکھتا ہوں ان سے مجھے بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو آگے لے کے چلیں گے اپنی سربراہی میں۔ کراچی میں بہت کام ہونا ہے، وہ چیف منسٹر صاحب خود ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو۔ ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا تو مسائل حل ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں ایم کیو ایم کا میئر نہیں ہوں، میں کراچی کا میئر ہوں۔ اس پہ روک رہا ہوں میں
तो कराची के मेयर के नाते हम मिल के काम करेंगे, इस शहर के लिए काम करेंगे। और मैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग, जिनका ताल्लुक़ पुलिस से है, जिनका ताल्लुक़ रेंजर से है, मैं डीजी रेंजर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मिल के इस मुल्क के लिए काम करना है। मुझे इल्म है कि आप लोग जानों का नजराना दे रहे हो ताकि पाकिस्तान की अवाम सुकून की नींद सोए, इस मुल्क में, इस शहर में अमन कायम हो। हम आपके साथ हैं। बिलाल साहब, आज अवाम ने मैंडेट दिया है हमें, हम मिल के आपके साथ काम करना चाहते हैं। हम कराची में अमन चाहते हैं, इंशाल्लाह हम मिल के अमन कायम करेंगे। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इलेक्टेड लोग नहीं हैं सिर्फ, मेरे साथ पीटीआई भी है, मेरे साथ जमात इस्लामी भी है, मेरे साथ मुस्लिम लीग नून भी है, मेरे साथ एएनपी भी है, मेरे साथ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। मैं उनके घरों पे जाऊंगा, उनके दफ्तरों में जाऊंगा, क्योंकि मसला कराची का है। हम मुत्तहिद होंगे तो ये मसाइल हल होंगे, और अगर हम लड़ते रहे या हमें लड़वाने को कायम रखा, साजिशें कायम रखी, तो ये शहर तरक्की नहीं कर सकेगा। जैसे कि मैंने कहा, रेवेन्यू जनरेशन कराची से होती है। हम कोशिश करें यहाँ अमन कायम करें, मैक्सिमम जनरेशन हो रेवेन्यू की, पूरा मुल्क, पूरा सिंध तरक्की करे। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें हमारी सरबराही करें। कराची के ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल को हम जानते हैं। हमने कराची की वजारतें चलाई हैं और बखूबी चलाई हैं, हमने लोकल गवर्नमेंट चलाई है और बखूबी चलाई है, हमने डिलीवर किया है, हमें मसाइल का पता है, हमें मसाइल हल कैसे होते हैं वो हमें पता है। तो हमसे फ़ायदा उठाएं। वी आर पार्ट ऑफ दिस solution. We are the part of this solution to resolve the issues, to resolve the problem of Sindh. हमें पार्ट समझें, हमारे घर हैं यहाँ, हमारे ख़ानदान हैं यहाँ। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कराची का या सिंध का अमन ख़राब हो। हम सबको साथ लेना चाहते हैं। मुझे रहनुमाई चाहिए होगी आईजी सिंध की, मुझे रहनुमाई चाहिए होगी डीजी रेंजर साहब की। ऐसे एलिमेंट्स इस शहर में मौजूद हैं जो इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रखना चाहते हैं। हम उनका किला कमा करेंगे, हम उनको इस शहर से ख़त्म करेंगे, हम उनको निकालेंगे। ये इलाके हमारे इलाके हैं, इन्होंने हमें वोट दिया है और हर शहरी इस शहर का चाहता है कि इस शहर में अमन हो, इस शहर में हमारे बच्चे ग्राउंड्स में और पार्क्स में खेल सकें। जो लोग नौकरी या कारोबार के लिए घर से निकलते हैं तो वो सुकून से अपने घर वापस आएं। ये हमारी सोच है। हम चाहते हैं कि बहुत हो चुका, बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी, बहुत खून खराबा हो चुका है इस शहर में, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम हर मज़हब के लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। यहाँ कायदे आज़म के जो कॉल हैं, कायदे आज़म ने जो हमें गाइडलाइन दी थी, डायरेक्शन दी थी, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। हम तासुब नहीं करना चाहते और हम ये भी चाहते हैं कि हमसे भी तासुब ना किया जाए। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया था। हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ क्या बात कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकें। देखें,
जहाँ तक कराची के इश्यूज़ का ताल्लुक़ है, मसाइल का ताल्लुक़ है, जैसे कि मैंने कहा हमारे टिप्स पे हैं वो मसाइल। हम इस शहर में पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, हमने इस शहर की वजारतें संभाली हैं, हमने काम किया है, हमने डिलीवर किया है, हमारे पास डायरेक्शन भी है और हमारे पास इश्यूज़ की प्रायोरिटीज़ भी हैं। इंशाल्लाह ओथ होने के बाद हम मिल के बैठेंगे। मैंने आज पीटीआई के ज़िम्मेदारों से बात की, इमरान इस्माइल से बात की मैंने आज कि ओथ के बाद हम मिल के बैठेंगे, आप अपनी सजेशंस देना मुझे। इसी तरह मैं जमात के ऑफिस भी जाऊंगा, मैं एएनपी के दफ्तर भी जाऊंगा। हमें तलखियां ख़त्म करनी है, उनके इलाकों के सजेशंस लेंगे जो उनकी प्रायोरिटी बनती है। मैं सारे डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, सबको साथ लेके चलेंगे और वो उनके इलाकों के इश्यूज़ भी उसी तरह रिजॉल्व करेंगे जिस तरह हम अजीज़ाबाद के इश्यूज़ रिजॉल्व करेंगे। इनसे बैठकर कैसे सारा सिस्टम चलेगा, ये खिताब करेंगे? क्या इस शहर के इक़्तिदार के या इसके जो आने वाले कल के फैसले वो जेल में बैठकर होंगे? देखें, जो मुकदमात मुझ पे हैं वो आप भी जानते हो, एक मिनट वो आप भी जानते हो। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आज भी सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस सवाल का जवाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस उनसे लेना चाहता हूं। आसिफ जरदारी साहब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं, बिलावल साहब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं कि आपकी जेलों में कोई भी सियासी कैदी नहीं है। ये मैं खड़ा हूं सियासी कैदी, 1 महीना हो गया है मुझे झूठे मुकदमों में बंद किया हुआ है। मेरे साथ रऊफ सिद्दीकी भाई जेल में है, वो एमपीए हैं, झूठे केसेस में हमें बंद किया है। ये कब तक हम लोग करते रहेंगे? ये कब तक हमारे होम का डिपार्टमेंट इस्तेमाल होता रहेगा इन झूठे मुकदमात को आगे बढ़ाने के लिए? पाबंदे सलासल जिसको किया जा रहा है उसकी नीयत ये है कि वो बाहर निकल के अवाम ने उसको मैंडेट दिया है वो अवाम के काम करे। आपने किन केसेस में मुझे अंदर बंद किया हुआ है? सब झूठे केसेस हैं, बेलेबल हैं। मैं आज अगर मैं यहाँ ऐसी बात करना भी नहीं चाहता कि कंटेम्प्ट लग के एक और केस बन जाए मुझ पे। अगर मैं अपने केसेस अदालत में ले जाऊं तो 5 मिनट में जज जो है वो मुझे मेरे सारे केसेस क्वाश कर दे, मुझे बाइज्जत बरी कर दे, क्योंकि केसेस में सब झूठ है। आज 12 मई पे 9 साल बाद याद आ रहा है आपको? क्या मजाक है ये? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के चौधरी इफ्तिखार साहब, जिनकी वजह से 12 मई अकर हुआ, उन्होंने 2007 के बाद 4 साल वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। उन्होंने इस केस को छेड़ा नहीं। और जो हाई कोर्ट का फैसला है इस केस में, हाई कोर्ट का फैसला मेरे पास है, उसने कहा है कि ये केस को हम विड्रॉ करते हैं। जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, बिल्कुल सही मेजर्स लिए उस केस पे। जो गवर्नमेंट ने 12 मई को मेजर्स लिए हैं उसको हाई कोर्ट ओन करता है। तो अब आप उस बहाने फॉल्स केसेस बना रहे हो, मुझे पाबंद करके आपको मिलेगा क्या? आपने 1 महीने मुझे पाबंद रखा है, मगर अवाम ने तो मुझे ही वोट डाला। अवाम ने तो अरशद भाई को वोट डाला। अवाम ने तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदों को ही वोट डाला। फायदा क्या हुआ? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अच्छी चीजों में एनर्जी वेस्ट करो, लगाओ अच्छी चीजों में जो काम आए, जो शहर के काम आए। मुझे बंद करने से फायदा क्या होगा? क्या 12 मई का मसला हल हो जाएगा? अगर मर्द के बच्चे हो तो 12 मई का केस मुशर्रफ पे डालो, आर्टिकल 6 लगाओ, मैं फिर जानूंगा आपको। तो मैं तलखियों में जाना नहीं चाह रहा। आप 12 मई का जिक्र कर रहे थे, मैंने आपका जवाब दिया।